कल जो अपन ने कर लिया था उस पैराग्राफ में दोबारा पढ़ देता हूं। बिफोर सेइंग एनीथिंग, इस बात के बारे में कि भाई बात क्या है इसमें। कि the writer in the quotation says that he believes into materialism and believes in all the proceeds and fruits of healthy materialism for everyone. Further on, he says that one who has not experienced and known it can be as exquisite as a saint and as rich as a poet, but that is not simply because of their deprivation of these things. Simply being deprived of material benefits does not make one a saint or poet. You can be one in spite of your deprivation. Here it seems that the writer is implying that materialism and its proceeds do not affect and have not a very important role in your practice towards sainthood or being a poet. You can be any one of them, even having materialism and all its fruits. Therefore, he concludes that materialism and its fruits should be for everyone. No one should be deprived of its fruits of good cooking, theaters, opera, orchestras, bands, etc. Before saying anything, if we make an impartial observation and see the results of such a perception, it's not so hard, given that the world has been striving towards this for decades. We find that it has brought nothing but unhappiness, rising dissatisfaction, and problems of grave concern that threaten the very existence of the human race. We have been so blinded by materialistic pursuit that we haven't stopped even once and questioned its validity and wholesomeness, despite the fact that following after it has brought anything but real welfare. From the most material to the psychological level, we are worse off. If we see the state of services provided, be it healthcare or education or administration, we are in a terrible condition. The service sector is plagued by an utter utilitarian spirit that does not have any regard for the quality of service being provided. The same is the case in the goods sector. Rising degradation in the quality is what is prevalent everywhere. In all the fields, everywhere, this utilitarian spirit is leaching away whatever possibility of good is there. एक सेकंड में गेट बंद करता हूं। भाई एक चीज आपको फंडामेंटली इसके अंदर समझनी पड़ेगी। हम गुड्स और सर्विसेज दो की बात करते हैं। गुड्स, कोई भी विकसित देश किसको बोलते हो आप? डेवलप्ड कंट्री उसको बोलते हो जिसके अंदर आपका सर्विस सेक्टर बड़ा होता है और जो गुड्स सेक्टर है वो छोटा होता है। उतना ही वो डेवलप्ड है जितना कि आपका सर्विस सेक्टर बड़ा है। अब सर्विस अपने आप के अंदर शब्द जो है सेवा, सेवा का क्षेत्र, सेवा बिना चेतना बिना भावना नहीं हो सकती। मियरली ये फैक्ट कि आपने उसको मेहनताना या उसको तनख्वाह या फिर उसका जो भी है वो बढ़ा दिया, टीचर को 3 गुना आप पे करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या क्वालिटी ऑफ जो उसकी सर्विसेज हैं, इस सर्विस में कोई चीज प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा एज सच। आपका टेलीफोन ऑपरेटर है, वो कोई चीज प्रोड्यूस एज सच थोड़ी कर रहा है। टीचर है या डॉक्टर है, आप उसको 5 गुना पैसा दे दोगे तो भी उसकी भावना के अंदर क्या फर्क पड़ गया। तो इसलिए जो विकसित देश है जिसके अंदर ज्यादा बड़ा भाग इसमें किसका रहता है? सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर बिना चेतना या फिर बिना भावना, वो तो ये हो नहीं सकता। तो आप सच्चा विकास इस तरीके से हो ही नहीं सकता यदि चेतना के अंदर विकास न हो रहा हो। जीडीपी आप मापते हो खाली किस चीज से? भाई घर के ऊपर एक फैमिली,
काम करता है, कमाता है। वाइफ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी चीज़ों की लेती है। एक तालमेल के अंदर सारी चीज़ चल रही है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। ईगो नहीं है बेसिकली। अब इसके अंदर वाइफ ने साथ के अंदर काम करना शुरू कर दिया। ईगो नहीं है तो एक अलग बात है, पर आपकी जीडीपी डबल हो गई, 2 जने कमाना शुरू हो गया। पर अब बच्चे आपके हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए तीसरे को हायर कर लिया, जीडीपी आपकी 2.5 गुना 3 गुना हो गई। ईगो है इसलिए आप अपनी इंडिपेंडेंट सैलरीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, ये है, वो है, ये सारा मेंटेन कर रहे हो। फिर ऐसे के अंदर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, इसके अंदर आपके तुरंत ही और दूसरे तंत्र हैं, वो सारे के सारे पिक्चर के अंदर आ जाएँगे। न्याय तंत्र आ जाएगा, क्योंकि आपका विभेद है। पहले वाले केस के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब इस केस के अंदर आपकी जीडीपी खूब ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर खूब कितने सारे सेक्टर्स हैं आके मिलने शुरू हो गए इसमें। आप कह रहे हैं ये फ्लरिश कर गया। तो ये जो मानक हैं हमारे, आपका पुलिसिंग है, ये देश के डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। वकील कितने बढ़ गए आपके देश के अंदर, ये डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। आपके हॉस्पिटल कितने बढ़ गए, ये कोई डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। आपके ड्रग्स के सेंटर्स या उसको डी एडिक्शन के सेंटर्स कितने खुल रहे हैं, ये कोई निशानी नहीं है, क्योंकि ये कोई भी डेवलपमेंट कर नहीं रहे। अगर ज़्यादा बड़ा भाग आपकी जीडीपी का, आप तो और कोई दूसरा फैक्टर तो क्योंकि हम माप नहीं सकते इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और तो मनुष्य जो है वो तो गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। मनुष्य का वर्णन मात्रा में नहीं कर सकते ना आप, गुण के ऊपर है। गुण हमारे कैलकुलेशन में आता नहीं। तो इसलिए इसकी तनख्वाह इतनी है, ये महीने के इतने पैसे कमाता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है, बस। तो आप मात्रा के तरीके से गुण को निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि गुण कभी भी मात्रात्मक नहीं है, ये तो चीज़ ही अलग-अलग है। तो ये एक यूनिवर्सली ये चीज़ जो है किसी-किसी के अगर समझ में आ भी रही है, पर अल्टीमेटली करें क्या इसका? अगर ये कहो भी, जैसे लोग कहते हैं भावना का, चरित्र का, भई चरित्र का निर्माण करो। हालाँकि हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसा सच कोई बात कहते नहीं, वो तो विकास की बात करते हैं। और विकास विकास के मानक भी पश्चिम जो हमको प्रदान कर रहा है। एक सीमा तक डिफेंस मैकेनिज़्म जहाँ तक है, डेफिनिटली संसार के सामने एक बहुत मजबूत हमको सिचुएशन के अंदर पोज़ीशन में होना चाहिए। पर इससे ज़्यादा मजबूत पोज़ीशन यदि हम भारतीय तरीके से ये काम करेंगे, और ज़्यादा मजबूत पोज़ीशन में होंगे। अदरवाइज़ यदि कोई भी टेक्नोलॉजी लेते हो तो आपकी जेब के अंदर बम है, ये मानो आप। ये तो यही दिखाया है उन्होंने। सबकी जेब के अंदर बम है, अगर आप दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हो। और ये बम तो आपके शरीर का नुकसान कर सकता है। और दूसरी संस्कृति से विचार, उनके डेवलपमेंट के मानक अगर ये लेते हो, ये तो बहुत बड़ा सर्वनाश है एक तरीके से। तो विश्व जो है भारत के मानक को आँखें बिछाए तैयार है लेने के लिए, न कि हम उनके मानकों को स्वीकार करने के लिए। तो उल्टा हो जाएगा। आत्मा के स्तर के ऊपर हम करें और आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से एक माकूल उत्तर दें, उसका सही उत्तर दें। तो यदि भौतिक तरीके से भी आप इसको देखते हो तो कभी भी शुभ परिणाम आप आत्मा को दरकिनार करेंगे और ये सोचेंगे सर्विस सेक्टर अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं शिक्षा अच्छी कैसे दे दूँगा आपको? जस्ट मियरली इस फैक्ट के ऊपर कि आप मेरे को बहुत अच्छी तनख्वाह दे रहे हो। इससे शिक्षा मैं आपको मन से कैसे दे दूँगा ये बताओ? मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, मैं हो सकता है कि आपको छोड़ के, क्योंकि मेरी जब तक स्वार्थ पूर्ति हो रही है आपके अंदर, तब तक मैं ये तोलता रहूँगा, इस हर जना इसको तोलता रहेगा, भई यहाँ मेरे को ये सुविधाएँ मिल रही है इसलिए बैठे रहो, ठीक है इसमें। कुछ इसको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इसके साथ तोलते हैं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अंतर आता है। दूसरा कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट क्या करेगा, यहाँ पैसे मिल रहे हैं ना। भाई इतनी देर तो कान बंद रखना है, अपने को इग्नोर करो ना इसकी बात को। दूसरा कहता नहीं मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। वो वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा देता घर के ऊपर आके, वहाँ धराशायी हो जाता है। सब टोटल तालमेल चल रहा है, बिल्कुल तालमेल है एकदम।
तो ये गुड्स सेक्टर, इसके अंदर भी आप गुड्स सही नहीं हो रहे, गुड्स तो अच्छे मिल ही नहीं रहे, सर्विसेज बिना चेतना हो नहीं सकती। तो हम बेटर ऑफ नहीं हो सकते, वर्स ऑफ ही होंगे, जिसको जितना विकास कर रहे हो आप, क्योंकि अरे भाई आपकी रिक्वायरमेंट तो लिमिटेड हो सकती है। आप कोई भी चीजें काम में ले रहे हैं, आपके अननेचुरल डिमांड्स ही वो भड़का के बाजार चल सकता है। बाकी तो रेगुलर आपकी डेली कैसे कंज्यूम कर सकते हो आप? भोजन तो फिर भी एक सीमा में कंज्यूम कर सकते हो, और दूसरी चीजें कितनी कंज्यूम कर सकते हो? पूरे विश्व में समस्या तो वेस्ट को डंप करने की आ रही है, बाहर तो पैसा और लेते हैं। ये ह्यूमन ग्रीड हमको यहां तक लेके आ गई। तो इसलिए ये तो सीधी सीधी गणित है कि अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो ग्लोबली आप कभी भी वेलफेयर में तो नहीं आ सकते। हमारा जो विकास का आज ढांचा है, वो कभी भी विकास का है नहीं। सच्चे मायनों में विकास कैसे हो सकता है? आप मन से प्रसन्न नहीं है तो विकास कैसे हो सकता है? जस्ट इसलिए कि आप बहुत अच्छा शर्ट पहन रहे हैं, ये विकास हो गया? आप हाथ के अंदर टॉप मोस्ट मॉडल का मोबाइल ले रहे हैं, अरे पर बात किससे करूं? मेरे तो कोई अपना है ही नहीं बात करने वाला। मेरे जो नजदीकी था उसके साथ तो कैजुअलिटी हो गई है। मोबाइल का क्या करें? जीवन के मायने, उसके सुखदता, ये इन चीजों पे है ही नहीं। आप ये कहते हो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं कह रहा हूं बेसिक तो आप मनुष्य मानते किसको? उसके ऊपर है बेसिक। एक जना सत्तू पी के भी इतना खुश हो रहा है और दूसरे को आप कुछ भी दे रहे हो कि बेचारे के साइकोलॉजिकल पीड़ा हो रही है। चारों तरफ बगीचे, ये वो, उसका आस्वादन थोड़ी कर सकता है वो। क्या कर लेगा उसका? So why has the following after material benefits been so unhealthy? Material benefits के पीछे जो हम प्रयास है पूरे विश्व का, वो इतना अनहेल्दी क्यों है? एंड लेफ्ट ए बैड टेस्ट इन द माउथ, और मुंह में इतना खराब टेस्ट क्यों छोड़ के गया? अरे भाई भारत तो इस रेस में, चलो आज जाके ये कह रहा हम विकास करेंगे, ये करेंगे, और उससे हो भी नहीं रहा। इसलिए इनको जिन मुद्दों के कारण इस भारत की आत्मा सत्ता में लेके आई थी, इनके दूसरे वहम आ गए कि हम इसको, विश्व को या भारत को बरगला देंगे विकास के नाम पे। तो इनकी किरकिरी हो रही है जगह 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 जगह। ये कितना सीधा सीधा प्रमाण है। आप कितने भी समीकरण बिठाइए, ये इस देश की साइकिक है, उसकी अंतरात्मा है, जो और किसी दूसरी चीज को स्वीकार करेगी नहीं। आपको प्रैक्टिकल लगे या अनप्रैक्टिकल लगे, आपकी प्रैक्टिकलिटी के कारण जो एक ज्यादा सजीव आत्मा है, आपका एक सेल शरीर का, वो बेवकूफी करे तो पूरा शरीर थोड़ी निकाल के बाहर कर देगा उसको। वो बेकार सेल है। तो वैसे ही ये इंडिपेंडेंट अपनी खुद की महिमा मंडन करने का प्रयास करें, उसके लिए मंदिर को भी काम में ले लें, उसमें राम जी को भी काम में ले लें, इसके हिंदुत्व को भी काम में ले लें, सच्चे उसके प्रति रहे नहीं, तो किरकिरी होना तो निश्चित है। इनकी जो चमक है, जिसके लिए ला के बिठाया गया था, यही हमारे जीवन में, माँ हमको दस्तक देती है, जीवन के अंदर एनर्जी देती है, चेतना देती है, पर वो अपेक्षा रखती है आपसे, मेरे से। आप व्यक्तिगत रूप से उसको स्वयं के ऊपर न लीजिए, आप माँ के लिए ऑफर कीजिए अपनी वो सारी शक्ति, सारी चीज, तो चार चांद लग जाएंगे आपकी एनर्जी में, आपके विश्व में आए को। अनमिस्टेकेबल है, देखो आप सीधे सीधे वो ही, जिसके आधार पे ये सोच रहे विश्व में हमारा तो ये राम मंदिर के कारण डंका बज रहा है, वहीं जितनी इनकी किरकिरी हुई है, क्या कारण है उसके पीछे? अब समीकरण बिठाने वाले तो बिठाएंगे ही, इसमें क्या बात है? सब पॉलिटिकल गिमिक है। कितने लोगों ने, जब हमने कैंपेन चलाई ये राम मंदिर की, ये अपने साधनालय की, उसके अंदर सारों ने कहा नहीं, कुछ तो बेवकूफ ऐसी बातें कर रहे, श्री अरविंद होते तो वो इसको दे देते इनको। अब अब क्या रही है? इनकी तो जमानत बचानी अपनी भारी पड़ रही है वहां पे, उस स्थान पे जहां पूरा विश्व जो है दिवाली मना रहा था। एक छोटी सी जगह वोट नहीं ले पा रहे, वो तो ये कह रहे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं यूपी में ही नहीं आए। ये अगर आप विद्रोह करते हैं ये वैश्विक शक्तियों से, ये बेसिक्स अगर आप समझ जाओगे, आप विश्व मूवमेंट को भी समझ सकते हो। नहीं, अगर आप
मेटीरियलिस्टिक तरीके से भी देखते हो तो भी क्या समझ सकते हो इन बातों को? इट इज बिकॉज इट इज नॉट द कंप्लीट थिंग। ये सच्ची चीज, पूर्ण चीज नहीं है। इट इज ए पार्शियल थिंग, एंड इन इट्स सेंटर इज ए कोर ऑफ सेल्फिशनेस दैट ड्राइव्स दिस होल मशीनरी। इस पूरी मशीनरी के केंद्र में, उसके मूल कोर के अंदर सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है। और जब बीज में स्वार्थ है, आप कह रहे हो उससे अच्छा पेड़ निकल के आएगा? संभावना ही नहीं है। मेरा आपसे प्रेम किसी कारण से है। मैं अगर आपसे कोई कोई मेरा कोई भी निहित स्वार्थ या हेतु है, मैं कभी भी आपको सच्चे शब्द कैसे कहूंगा? क्योंकि एक स्तर के ऊपर आके मेरे शब्द मॉडिफाई करूंगा, वो पर्टिकुलर स्वार्थ क्या है उससे उससे थोड़ा बहुत रंगूंगा। मैं आपको सच्ची चीज कैसे बताऊंगा? या कम से कम वो वाली चीज कैसे बताऊंगा जो मेरे अंतरात्मा की वाणी है? मैं तो सच्चा हूं ही नहीं। पहली बात तो यदि मेरे निहित स्वार्थ हैं आपसे व्यवहार में, तो उसमें मेरे को सच्चा सत्य मेरा हृदय बताएगा ही नहीं। दूसरे, अगर मेरे को कोई इंप्रेशन है भी, तो वो शब्द कभी भी अभिव्यक्त नहीं करेंगे। ये एक समस्या है। तो इसके सेंटर में ही सेल्फिशनेस है। मेरे जीवन, मेरे सुख साधन, ये आते ही तो हमारे ऋषि कह रहे सारा पाप, सारा दोष, जैसे ही खुद के बारे में विचार आता है, आप पाप की दुनिया के अंदर चले जाते हो। वैसे ही आपका विचार यदि माँ की ओर, सब टोटल प्रयास किस पे है कि आप अपने लोअर सेल्फ को भूल के अपने सच्चे सेल्फ के अंदर आए। गुरु इसकी प्रतिमूर्ति है सामने। तो जितना ही हम उसके प्रति, तो पश्चिम की संस्कृति इसको समझती नहीं। गुरु के प्रति समर्पण, और भारतीय भी, अरे भाई समर्पण करना पड़ता है, इस लाइन में आते हो त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। आपने तो देखो जीवन में कितना त्याग किया है। महात्मा जी भी कहते हैं अरे करना पड़ता है, तब आपको परम पद की प्राप्ति होती है, ये होती है वो। न तो महात्मा जी भी मक्कार है, कहने वाले की तो बात ही क्या है। महात्मा जी को ये कहना चाहिए रे परमानंद है बेवकूफ, आप आनंद के लिए आए हो या तकलीफ के लिए आए हो? तो अगर जो महात्मा जी ये कह रहा नहीं नहीं इसमें तो बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी ये करनी पड़ती है, ये उसको सेंस ही नहीं है। माँ के चरणों में जाके कभी कोई त्याग हो सकता है क्या? श्री अरविंद के आप प्रोक्सिमिटी के अंदर हो, वहां त्याग की क्या संभावना है? शिक्षा प्राप्त करने में त्याग कैसे हो सकता है? मूर्खता का त्याग भले ही हो सकता है, अगर उसको त्याग कहो तो। ये त्याग अगर है तब तो देखो भारी बात है। बाकी तो इस मार्ग में त्याग की कोई संभावना नहीं है। ये तो भर भर के आनंद लेने की बात है, परमानंद की बात है। आप ये कहो मैं मेरे आनंद को क्षीण क्यों करूंगा भाई? आपके साथ चर्चा करने में यदि मेरे को आनंद न आ रहा होता और हर चर्चा के अंदर पूरा जोश के साथ अगर मेरे को ये भारीपन लगता, तो आप कितने दिन आप तक भी ये चीज कम्युनिकेट हो जाती, आप भी उसमें उतना रस नहीं लेते। ये तो मेरे एंचांटमेंट है इस चीज का कि श्री अरविंद और माँ के शब्द जितना कहे उतना आनंद। वो आनंद आपके पास विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वो जब धीरे 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 आपके पास वो चीज जाती है, वो चीज अगर मेरे अंदर न होती, और मेरे को कोई ना कोई आपसे निहित स्वार्थ, जिसको सो कॉल्ड स्वार्थ, यूं तो स्वार्थ बहुत गहरा है मेरा, बहुत डीप स्वार्थ है कि आपका जीवन टर्न हो जाए, अरे माँ का काम हो जाए, अपना तो जीवन इसी के लिए है, अगर उसको कहो तो बहुत ज्यादा भारी स्वार्थ है। और यूं अगर वो जिसको आप दूसरा स्वार्थ कहते हैं वो, तो आपके पास ये चीजें कम्युनिकेट आप टिक ही नहीं पाते इतने लंबे समय, जितने भी समय आप हो। The only reference point that we seem to have is what is in it for me। मेरे को इससे क्या लाभ? सारी मशीनरी यदि ये कहे मेरे को इससे क्या लाभ, ये आपको कहाँ लेके चला जाएगा ये भाव? We have built our whole social, political and economic infrastructure only on this principle. As Sri Aurobindo eloquently points it out in the following quotation, the economic barbarism is barbarta hai economic, is essentially that of the vital man who mistakes the vital being for the self। आत्मा मान बैठता वाइटल बीइंग को। अरे उनका इतना नाम है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जना जना पूछता है उनको, उनका नाम लेने से कोई भी चीज मिल जाती है। जहां हाथ रख देते हैं वहां उनकी दुंदुभियां बजनी शुरू हो जाती है, विजय गीत हो जाते हैं जहां हाथ रख देते हैं। क्या हो गया इससे? दूसरा व्यक्ति एकदम सिंसियर है, किचन में खाना बनाता है, जिससे बेचारे से खुद के घर की ही सफाई पूरी सी नहीं हो रही।
ऐसा उसके चेहरे के ऊपर जो चीज है वो आपको और कोई दूसरी चीज नहीं दे सकती, पर ये तो आंखें हो तो पता हो ना। नहीं तो आध्यात्मिकता को मिस्टेक किससे कर बैठते हो? ओहो, इनमें तो इतनी ओकल्ट पावर है, इतनी जबरदस्त क्षमता है, ये तो हॉस्पिटल में नहीं जाते, ये तो ये नहीं करते। इतनी महान मूर्खता है। अब उनको कहो, फिर वो क्या हमको डिफाइन कर दो आप स्पिरिचुअलिटी, और वो ऐसा कह के ये कह रहे हैं कि मैंने जो ऑलरेडी मेरे धारणा कर रखी है स्पिरिचुअलिटी की, उसको वैलिडेट कर दो बस इन्हीं शब्दों के अंदर। आप कुछ दूसरा कहोगे तो हम आपको काटने के लिए आएंगे। तो इसलिए मिस्टेक्स द वाइटल बीइंग फॉर द सेल्फ एंड एक्सेप्ट्स इट्स सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट एम ऑफ लाइफ। यही बात है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इट इज डिजायर एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ पोजेशन। ये हम बार बार पढ़ के गए हैं गीता में भी। तो जीवन की कैरेक्टरिस्टिक, उसका लक्षण क्या है? डिजायर एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ पोजेशन, जो कि अपने आप में अंतरात्मा के लिए तो है ठीक, वाइटल के लिए है गलत। आप जब एको हम बहुश्याम, एक जब थे, उससे आप बहु हो गए, मल्टीप्लिसिटी के अंदर आ गए। अंतरात्मा अपने आप को पजेस करने की, ये जगत उसी का है। उपभोग करने की, अरे आपका बगीचा है, उसमें अंगूर लग रहे हैं, आप खा रहे हो, राइट है आपका। पर कोई चोर आ जाए, उसका राइट थोड़ी है। तो आपकी ये जो जो लाइफ पावर है, माँ को ऑफर्ड है, उसके लिए राइटफुल चीज है सारी की सारी चीज, पजेस करना। तो अंतरात्मा का तो सही ये रुख है, चीजों को संसिद्ध करना, पजेस करना, अधिकार में करना, अंतरात्मा का है। पर आप इसको एट्रीब्यूट कर देते हो लाइफ के साथ, प्राण शक्ति के साथ। फिर ये प्राण शक्ति आपके मन में प्रवेश कर जाती है, और मन जो कि एक उच्चतर शक्ति है, कामना में मन बन जाता है। ये सारा का सारा इंटरमिशंस सिंथेसिस में आएगा। एक स्तर के ऊपर हम रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर पढ़ के गए हैं, योगिक साधन के अंदर, कि कैसे निचले भाग ऊपर वाले भागों को दूषित कर देते हैं। Just as the physical barbarian makes the excellence of the body and the development of physical force, health, and prowess his standard at aim, भौतिक बर्बर व्यक्ति क्या करता है? एम किसको बनाता है? एक्सेलेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के संबंध में जो जो है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फोर्स, हेल्थ एंड प्रोग्रेस हिज स्टैंडर्ड एंड एम। So the vitalistic or economic barbarian makes that satisfaction of wants, desires, and the accumulation of possessions its standard and aim. His ideal man is not the cultured or noble or thoughtful or moral or religious, but the successful man. तो आप कहते हैं इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत ये है कि आपको आपकी ग्रेवयार्ड के अंदर ले जाएगा ये शुरुआत ही, बीज ही खोटा है, ये गलत है ये बीज। To arrive, to succeed, to produce, to accumulate, to possess is his existence. The accumulation of wealth and more wealth, the adding of possessions to possessions, opulence, show, pleasure, a cumbrous, inartistic luxury. Inartistic luxury है ये, भद्दी लगती है, कितनी भद्दी लगती है। आप ये सारे दिन टीवी पे जो ये फ्लॉन्ट करते हैं उसको देखो आप, वो तो उसकी नुमाइश कर रहे हैं, पर कितनी ज्यादा भद्दी है वो। ए प्लेथोरा ऑफ कन्वीनियंसेस, मतलब अति प्रचुरता है आपके पास कन्वीनियंसेस की। सोफा है तो भैया इसमें थोड़ा सा भी ये नहीं, रंग रूप भी ऐसा, टच करो तो एकदम आराम। स्टोर्स के अंदर जाओ तो चलने की दिक्कत नहीं है आपको, एकदम एस्केलेटर्स वगैरह हैं, कोई आपसे कुछ बदतमीजी नहीं, गाड़ी में बैठो तो हीटेड, ये वो, प्लेथोरा ऑफ कन्वीनियंसेस। लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्यूटी एंड नोबिलिटी। नोबिलिटी का तो लेना देना नहीं, क्या नोबिलिटी है? रिलीजन वल्गराइज्ड, रिलीजन को भद्दा बना दिया गया है, खाली बार्गेनिंग है रिलीजन, रिलीजन के नाम पे टोटल बार्गेनिंग। और कोल्डली फॉर्मलाइज्ड, जिसमें आप भोजन से पहले अपनी प्रार्थना बोल दो, पर ये कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, चाहे मरे हुए से कोई मतलब नहीं है, मर गया आप तो अनुष्ठान के अंदर लग रहे हो। कोल्डली फॉर्मलाइज, आपने औपचारिक बना दिया इसको। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट
turned into a trade. अभी पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट प्योरली एक ट्रेड एंड प्रोफेशन. एंजॉयमेंट इटसेल्फ मेड ए बिजनेस. एंजॉयमेंट तो सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस हो रहा है इस टाइम. आप ये देखिए, दिस इज कॉमर्शियलिज्म. हिज आइडिया ऑफ रिलीजन एट बेस्ट ए पाइटिस्टिक फॉर्मलिज्म, एक पवित्रीकारक फॉर्मलिज्म, और द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन वाइटलिस्टिक इमोशंस. मतलब ये तो इस हद तक चला गया कि ये सारी चीजें एक्सट्रीम पे पहुंच के क्रिमिनलिटी बन चुकी हैं. ये सारी की सारी चीजें. ही वैल्यूज एजुकेशन फॉर इट्स यूटिलिटी. और एजुकेशन क्या है? यूटिलिटी इन फिटिंग ए मैन फॉर सक्सेस इन ए कॉम्पिटिटिव, और इट में बी ए सोशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एग्जिस्टेंस. ये तो आपको अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है जब बार बार एजुकेशन का और कोई लेना देना ही नहीं है. सोशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एग्जिस्टेंस. साइंस किसके लिए? फॉर द यूजफुल इन्वेंशंस एंड नॉलेज, द कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस, मशीनरी ऑफ प्रोडक्शन with which it arms him. साइंस बस प्योर साइंसेस कहाँ, विचार कहाँ, अप्लाइड तरीके से. और वो भी अप्लाइड किसके ऊपर? कंफर्ट और बढ़ा दो, कन्वीनियंसेस और बढ़ा दो, मशीनरी ऑफ प्रोडक्शन ये और बढ़ाओ. ये सारी की सारी चीजें ये आप इसके अंदर इनकी, और ये श्री अरविंद के शब्द हैं. ये भी नहीं कह सकते कि भी ये आपका इंटरप्रिटेशन है. और कब कह रहे थे ये? आज तो भयंकर भड़क चुकी है ये चीजें. इट्स पावर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन, स्टिमुलस टू प्रोडक्शन. करना ही पड़ेगा प्रोड्यूस, नहीं आउट ऑफ फैशन चले जाओगे. चाहे सेकंड ग्रेड चीज प्रोड्यूस करो, आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आउट. तो इसलिए आर्म्स प्रोड्यूस करें, इसके लिए दो देश लड़ते रहें तो बढ़िया रहे. द ओप्युलेंट प्लूटोक्रेट एंड द सक्सेसफुल मैमथ कैपिटलिस्ट and organizer of industry are the supermen of the commercial age and the true, if often occult rulers of its society. इसकी सोसाइटी के रूलर्स कौन हैं? सक्सेसफुल मैमथ कैपिटलिस्ट. चाहे एकदम नीरा अनकल्चर्ड आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अंगूठा छाप हो, आप उसको सीएम बना देते हो, या महामक्कार आदमी हो आप. दूसरा उसके दलीलें, मतलब कमाल बात है, दूसरे दलीलें क्या देते हैं. अरे तो दूसरे भी तो ऐसे ही हैं. ये कोई दलील है क्या? दूसरा भी तो चोर है. तो मतलब इससे इसकी चोरी लेजिटिमाइज हो गई क्या? ये क्या मतलब है? ये क्या दलीलें हैं? हम इतने निचले लेवल पे आ गए बौद्धिकता के. The essential barbarism of all this is the pursuit of vital success, satisfaction, productiveness, accumulation, possession, enjoyment, comfort, convenience for their own sake. और जीवन इसके लिए है नहीं. जब आप जीवन का उद्देश्य समझ जाते हो तो ये सारी बातें उसका खंडन कर रही हैं. तो जीवन का उद्देश्य का ही जो खंडन कर रही है, वो आपके लिए अल्टीमेटली कल्याणकारी कैसे हो सकती है? इसलिए जहां से ये प्रेमिसेस हैं, जो हमारे मूल आधार, जो सोच के हमने शुरू किया, वही एकदम बेनफुल है, बेकार है वो. द वाइटल पार्ट ऑफ द बीइंग इज एन एलिमेंट इन द इंटीग्रल ह्यूमन एग्जिस्टेंस. एक अंग है ये इंटीग्रल पार्ट में, एज मच एज द फिजिकल पार्ट. इट हैज इट्स प्लेस बट मस्ट नॉट एक्सीड इट्स प्लेस. वाइटल का जो स्थान है वहीं रहो. ए फुल एंड वेल अपॉइंटेड लाइफ इज डिजायरेबल फॉर मैन लिविंग इन सोसाइटी, but on condition that it is also a true and beautiful life. Neither the life nor the body exist for their own sake, but as vehicle and instrument of a good higher than their own. अब फिर इसमें प्रश्न आ गया, तो उस एटीट्यूड में प्रॉब्लम क्या है? रे एटीट्यूड वहां से शुरू करते, उसी में प्रॉब्लम है. सच्चा आदमी वो तो कहता है मैंने माँ को अपने आप को दिया है, इसमें अगर मेरे पास बेसिक एम्यूनिटीज होंगी होंगी, नहीं होंगी नहीं होंगी, ये तो माँ डिसाइड करेगी मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा. इस संस्कृति ने कभी इस आधार के ऊपर अपनी व्यवस्था नहीं की और टॉप मोस्ट रही, हर चीज में टॉप मोस्ट. और वहीं एक दूसरी संस्कृति उस दृष्टिकोण से जो आपको हार्मलेस लगती है, इसमें क्या दिक्कत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है. और वो मनुष्य की बेसिक रिक्वायरमेंट को भी एकदम निचले, आपके पास हवा नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है,
अच्छा आपके पास संपर्क नहीं है, एक माँ बेटे का समय बिताने को नहीं है, पति पत्नी को समय नहीं है, परिवार एक साथ बैठ के बात कर सके उसके समय नहीं है, आप इनकलकेट कर सको अच्छी हैबिट्स, अच्छी बातें, समय ही नहीं है। तो इस सारी मशीनरी ने हमको यहाँ पहुंचा दिया। भारतीय तरीके तो नहीं पहुंचाया। पश्चिम की रेस, वो रेस आपको ये कह चुकी है कि इतने साल में धरती छोड़ने की मजबूरी हो जाएगी, मरो या फिर छोड़ दो इस धरती को। भारत तो नहीं कह रहा। तो जो लोग ये बातें कह रहे हैं उनके मानक यहां तक ले आए, तो क्या वो सही मानक कैसे हैं? उनके रिजल्ट से देखो आप। वो जिन आधारों पे चले थे, वो आधार कितने वर्षों में, 50 40 100 वर्षों के अंदर, आपको 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, उसमें आपको एकदम गर्त के अंदर लिया है। क्योंकि पहले इनके पास ये रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इतनी सारी थी नहीं। आज ये जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो जो आप सोच के चल रहे थे कि 2025-50 तक या जब तक भी, तो उससे वो नजदीक आता जा रहा है। वो तो दे मस्ट बी सबॉर्डिनेटेड टू द सुपीरियर नीड्स ऑफ द मेंटल बीइंग। इसका तो किसी को सेंस ही नहीं है। मतलब इतने दिन से रोज मेंटल 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 मेंटल, तो यहाँ कोई किसी का अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। चेसन्ड एंड प्योरिफाइड बाय ए ग्रेटर लॉ ऑफ ट्रुथ, गुड एंड ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम बिफोर। और ये क्या था, ये हम पढ़ के गए। बिफोर दे कैन टेक देयर प्रॉपर प्लेस इन द इंटीग्रैलिटी ऑफ ह्यूमन परफेक्शन, therefore in a commercial age with its ideal vulgar and barbarous of success, सक्सेस का जो आइडियल, और ये सक्सेस का आइडियल क्या है? वल्गर, बहुत ही भद्दा है, अश्लील है। वल्गर मतलब अश्लील। आप तो कह रहे हो इसमें दिक्कत क्या है पंकज भाई, इसमें सक्सेस, और ये श्री अरविंद कह रहे हैं कॉमर्शियल एज विथ इट्स आइडियल ऑफ सक्सेस, और वो क्या है? वल्गर एंड बार्बरस। आपको बर्बर बना देता है, मनुष्य से नीचा बना देता है वो। बर्बर उसको कहते हैं जिसके कोई दया धर्म नहीं, कोई कंपैशन नहीं, कोई गुडविल नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, वो बर्बर। अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, वाइटलिस्टिक सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिवनेस एंड पोजेशन, द सोल ऑफ मैन में लिंगर ए वाइल। और आत्मा क्या है? पड़ी रहेगी थोड़े समय में, लिंगर ए वाइल फॉर सर्टेन गेन्स एंड एक्सपीरियंसेस, बट कैनॉट परमानेंटली रेस्ट। इफ इट persisted too long, life would become clogged and perish of its own plethora। आपकी जो भव्यता, प्रचुरता, उसी से लाइफ खत्म हो जाएगी, जो कि पश्चिम में हो रही है। और बर्स्ट इन इट्स स्ट्रेनिंग टू ए ग्रोस एक्सपांशन, इतना भारी एक्सपांशन हो गया आपके बस में ही नहीं आ रहा। लाइक द ट्रू मैसिव टाइटन, भयंकर विशाल कोई दैत्य हो गया। इट विल कोलैप्स बाय इट्स ओन मास, मोल रूएसुआ। इसका मतलब ये कि इट विल कोलैप्स बाय इट्स ओन मास, अपनी खुद का इतना भयंकर वजन हो गया, वो उससे ही दब के मर गया। ये लो साहब, ये आप जो कह रहे थे वो यहां लेके आएगा। फ्रांसिस हैकेट clearly sees a human being as just this surface body with a vitalistic emotional being behind his sight, and can, उसकी क्षमता, do not go beyond the surface appearance of the human being, and hence he stresses on its wholesale satisfaction and believes that every person should have this। और उसका विश्वास है कि सारों को मिलनी चाहिए। बात है हाइपोथेटिकल, सारों को मिल भी नहीं सकती। इसलिए नहीं मिल सकती, सारे अलग अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट मेरे को इसमें। अरे एसी लगाने के अंदर भी एक को लगती, ठंडे को क्यों लगाएगा वहां? आपको सबको उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक बात है। बट इन रियलिटी ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट हिज फिजिकल एंड वाइटल एंड मेंटल पार्ट्स। मेंटल तक तो आया ही नहीं, खैर। ही इज इन्फिनिटली मोर देन दैट। ही इज द सोल बिहाइंड, द डिवाइन इन हिम, and the satisfaction and joy that the inner part, the soul, brings is boundless and infinite, and not like the enjoyment that comes upon satisfaction of vital part, which is tepid, shallow, and momentary, छिछला है, क्षणिक है। Even the satisfaction of a part little deeper in us, इससे थोड़ा सा गहरा पार्ट भी संगीत है, कला है, साहित्य है। या देने में जो आनंद है, ये वाली मानसिकता में देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं जितना कितने का उपभोग कर लूं,
ये मानसिकता तो मानवीय सुख उपभोग की भी आपको संभावना नहीं छोड़ती, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर जना अपने स्वार्थी होगा तो आपकी जीडीपी खूब ऊपर चली जाएगी। तो even the satisfaction of a part little deeper in us brings infinitely more joy than all the materialistic fruits put together. The joy of serving the person you love, ये वाला तो इसमें नहीं आता. The joy of serving the nation. अगर नेशन को सर्व करने की बात है तो बेसिक एमिनिटीज की तो आप सोचोगे नहीं, उसमें तो जॉय ही दूसरा है. मुद्दा चेंज हो गया ना. आइडियलिस्टिक आदमी का ये वाली बात के ऊपर वो कहता है यार ये तुम तो गलत डिफाइन कर रहे हो, ये डेफिनेशन तुम्हारे प्रेमिसेस ही गलत हैं, जिस आधार पे तुम अब आर्ग्यूमेंट शुरू कर रहे हो वो एरोनियस है, फॉल्टी है. Thousands of freedom fighters laid down their life without a blink of the eye for their motherland. चले गए वहां ट्रेंचेस के अंदर पड़े. महाराणा प्रताप, rather than making a deal with Mughals, which would have given him a materially royal life of the palace, chose to stay in jungle and fight for his whole life. और यही आपके यूक्रेन है. अगर वो स्वीकार कर लेता, जैसा कि दूसरे कह रहे हैं, तो इतने जने नहीं मरते. अरे पर आपका आइडियल जो है, एक देश को राइट है मुक्त होने का, कोई भी आके उसको गोबल अप कर लेगा, क्योंकि आप गधे हो. आप अपना थोड़ा सा एमिनिटीज या बेसिक सुख साधन या अरे इतने जने को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, इस आधार के ऊपर एक देश को अपनी इंटीग्रिटी, अपनी फ्रीडम है, वो किसी के भी चरणों के अंदर क्यों, तो ये आज इसके है कल उसके है, ये तो बिकाऊ हो गए फिर आप. बजाय इसके कि उसका नेशनलिस्टिक जो चीज है वो सामने निकल के आ गई. यही बात तो क्षत्रियों की थी. ये तो आज की एकदम जो आपका कंफर्ट वाला आदमी हो गया, ना ना ना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए. एक ये तो बूर्जुआ का आइडियल है. जो बूर्जुआ है वो इस तरीके की बात करता है, इसलिए आप समझ नहीं सकते. पूरी दुनिया कह रहे बेवकूफ लोग, नहीं तो दे देता. आपने कितना नुकसान किया है इसने. तो ये दृष्टिकोण रात दिन का फर्क ला देगा. आपको सेंस नहीं आएगा दुनिया में चल क्या रहा है. ये दृष्टिकोण यदि आप चेंज नहीं करते तो श्री अरबिंदो का तो कुछ भी नहीं समझ सकते. कैसे समझोगे. अब 25वां वॉल्यूम है या इवन 20वां जो हम बात कर रहे हैं, मतलब पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, लोगों को नाराजगी भी कि अब क्या बात कर रहे हो, आध्यात्मिकता हम समझ सकते हैं. मैं कह रहा हूँ ये वातावरण ही अलग है. ये अपनी ओर खींचने का वातावरण नहीं है, ये तो अपने आप को दे के आनंद महसूस करने का, कि ये तो और कितना आनंद आ जाए. रेवोल्यूशनरीज, आइडियलिस्ट्स lay down their life for their cause, for what they believe into, what drives them, what makes them leave behind all that the materialistic pursuit brings. It is that greater joy, that anand, which is impossible to experience if we are limited and concentrated on this physical body and its satisfaction. इसलिए कुंती की प्रार्थना देखो आप, भगवान को प्रार्थना कर रही है तो पूछ रहे, बोलो आपको क्या चाहिए. क्या भगवान, उसने बेसिक एमिनिटीज नहीं चाहिए. उसने कहा पीड़ा रहे, तकलीफ रहे, एग्जाइल की जिंदगी रहे, कंफर्ट की नहीं. जैसे ही आपके ये आती है, आपकी अंतरात्मा इतना सुखद महसूस करती है, बाहरी आपके जो सुख साधन है उसमें तो उसकी कब्र बन जाती है. उसमें जितना आपकी अंतरात्मा रोती है, अब देख लो, अगर आप थोड़े से सेंसिटिव आदमी हो तो आपके लिए मुद्दा एकदम चेंज हो जाता है. उसकी बात तो एकदम राक्षसी लगती है. आप तो कह रहे हो हार्मलेस है, हम तो पढ़ते ही ये लगता है कि अरे ये तो तेजाब डाल रही है आपके ऊपर. ये एक बेसिक फर्क है. जब तक ये नहीं आया इसका मतलब कल्टीवेशन नहीं है. आप तो उस पे डिस्कशन करने को ही तैयार नहीं हो कि मैं इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा. बस अच्छी बात करो, मेरे पास समय है क्या इस बकवास के लिए. दिस जॉय, दिस सेटिस्फैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ओनली ए पार्ट, ओनली ए लिटिल डीपर इन अस, दैट इज जस्ट बिहाइंड दिस सरफेस शीथ. सरफेस की जो शीथ है हमारी, उससे थोड़ा सा पीछे है, जस्ट बिहाइंड. What greater joy and satisfaction the soul, the innermost part in us would bring. As Sri Aurobindo says, if mankind could but see, though in a glimpse of fleeting experience के glimpse में भी यदि मनुष्य जाति देख पाती, what infinite enjoyments
जो मैं सुबह आपसे बात कर रहा था। What perfect forces, what luminous reaches of spontaneous knowledge, what wide calms of our being lie waiting for us. हमारा इंतजार कर रहे हैं in the tracts, उन कंदराओं में, उन स्थानों के अंदर which our animal evolution has not yet conquered, जिनको पाश्विक हमारा क्रम विकास जो है उसने अभी तक आयत्त नहीं किया है, विजित नहीं किया है। अगर ये एक बार भी मनुष्य जाति उन ग्लिम्सेस को, फ्लीटिंग एक्सपीरियंस के ग्लिम्स के अंदर कर पाती, दे वुड लीव ऑल। गोल्ड रश है, उसमें कोई ये देखेगा कि मेरे पाँव में छाले हो रहे, मेरे ये हो रहे। जैसे वो एक था, अफ्रीका में था, कई कई जगह ये गोल्ड रश रहा। And never rest till they gained till they had gained these treasures. कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी दृष्टि ने अभी कोई अच्छी चीज देखी नहीं, इसलिए आप पशुता की बात कर रहे हो। But the way is narrow, the doors are hard to force. ये 12वीं में हमने बात करी थी। And fear, distrust and skepticism are there, sentinels of nature. उसको आप देख लेना कि कैसे forbid the turning away of our feet from her ordinary pastures. आपके ordinary pastures हैं, चरागाह पे चर रहे हो, हम सारे के सारे चर रहे हैं, और गलती से कोई सा वहां जाता है ना, तो वहां गेट के ऊपर कौन खड़ा है? सेंटिनल कौन है? प्रहरी कौन है नेचर के? फियर, भय लगा रहता है, पता नहीं बातें दिव्य जीवन की करोगे, एक तैयार नहीं कि परिवार को छोड़ दें। डिस्ट्रस्ट, भाई पता नहीं कर पाएंगे, ये तो चलो सिक्योर ग्राउंड पे हैं। आपकी शिक्षा अच्छी तो लग रही है, आपकी बातें, कल को डिग्री नहीं होगी तो हो जाएगी, तब तो परित्राण हो जाएगा क्या इसका? उसके लिए आप ये सिक्योरिटी दे रहे हो क्या कि ये डिग्री होने के बाद तो ये सिक्योर है जीवन भर? ये कौन कह रहा है ये बात? जिनके पास डिग्री है वो कह रहे हैं उनको क्या मिल गया उनको? डिस्ट्रस्ट एंड स्केप्टिसिज्म, संशयवाद लगा रहता है। क्यों? बहाने आप कितने भी बना लो, पर ये नेचर के प्रहरी हैं जो कहते चलो भेड़ भेड़ हो तुम, उधर चलो, इधर नहीं बेटा, इधर नहीं, चलो उधर चलो। जैसे बच्चे को आप कहते हो ना, ना ना बेटा उधर जाके खेलो, वैसे ही आप में अंदर पहली बात तो ये उठती नहीं। और इतने चाहे सत्र करते रहो, ये कितने अपने में से ही हैं जो, कोई सावित्री में जा रहा है, कोई किसके अंदर जा रहा है, कोई किसमें किसमें किसमें। पर जब एक्चुअल ये बात आती है, यदि किसी दिन आपके इतने पुण्य हों और वो जागृत हो जाएं और मन में ये आ जाए कि मेरे को तो ये करना है, तो प्रहरी खड़े हैं, वो जाके कह देंगे नहीं ना बेटा इधर थोड़ी, उधर जाके खेलो, इधर इधर नहीं, ये तो एरिया 51 है, इधर नहीं, वहां संतरी खड़े, यहाँ नहीं आओ। तो फिर बाद में आप वापस इधर आ जाते हो अपनी गेंद लेके, हाँ मैं तो उधर जाके आया था, ये लो साहब, ये है। नाउ हियर वी कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट फैलेसी इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ हैकेट। इसके अंदर अब सबसे बड़ी जो इसमें त्रुटि, दोष, बकवास हैकेट के आर्ग्यूमेंट में क्या है? When we are so very engrossed in materialistic pursuits, how can we hope to have all the joy that our higher parts bring us? Following after it bars us from following those higher pursuits and satisfactions. यदि आपके दृष्टिकोण में वो है, जो कि जितने भी लगभग सारी जो मां श्री अरविंद वाले लोग हैं वो तो कह रहे हैं इसमें क्या जोर आ गया, ये तो हमारे गुरु तो पूर्णता की बात कर रहे हैं, और पूर्णता के नाम से वो पशुता में जा गिरते हैं, एकदम निरी पशुता में चले जाते हैं। बोथ दीज थिंग्स, और महर्षि अरविंद के समय ही अगर ओरोविल से या वहां से ये पत्र आ रहे हैं 20वें वॉल्यूम में, एक ने ये कहा, माँ बाहरी तरीके से खाली दुनिया को दिखाने के लिए हम हस्बैंड वाइफ के रूप में रहेंगे, बाकी तो आपका प्रोटेक्शन और ग्रेस हमारे साथ है ही, और हम आपके शब्द के प्रति लॉयल रहेंगे, तो आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में, और आपकी ग्रेस है, हम कोई भी लोअर चीजों में गिरेंगे नहीं, संसार का भी मुंह बंद हो जाएगा और एक डिवाइन का ही इस तरीके का काम हो जाएगा। माने का बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर तेरे को इन चीजों में फिर भी तू अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर पाता, तो फ्रैंकली दूसरा जीवन जी, तेरे को ऐसे दबदब के रहने की जरूरत नहीं है, पर आश्रम में नहीं।
यहां से चला जा। मतलब ये चीजें खेलने की, इंडल्ज करने की नहीं है। आइदर अपने आप को इससे बिल्कुल डिसइल्यूजन कर ले, नहीं तो यहां से लीव, बाहर जा। ये पत्र, इतने पत्र हैं ऐसे, ये मैं 20वें वॉल्यूम की बता रहा हूँ, 20वें में है ये। ऐसी ऐसी चीजें अकल्पनीय, ऐसे पत्र लिख के पूछ रहे हैं वो। और आप कह रहे हो बिना इनकी, इन संभावनाओं के हम चले जाएंगे ऐसी। आपको लगता है कोई इंडिपेंडेंट यो जगत है? अरे नहीं है भाई, सारी साइकोलॉजिकल चीज है। साइकोलॉजी में आपके कमी है तो बाहरी रूप तो वैसे ही होंगे ना, ये समझो। both these things are not, if we can use the word, compatible with each other। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। अब ये कितनी भी कही जाए, जब तक आप ये एक शिफ्ट नहीं ले लेते चेतना के अंदर, एक आपके एक बीच में एक फाइन लाइन रहेगी ही। एंड दिस द राइटर हैज ऑब्वियसली फेल्ड टू अंडरस्टैंड, एंड हेंस ही सेज that you can be on your way towards your sainthood even while having and enjoying the fruits that materialism brings us। The sane perception escapes him। जो थोड़ा सा भी सेन परसेप्शन है, वो उससे बच निकला। बिल्कुल इनसेन बातें कर रहा है वो, आप कह रहे हो सेन बातें कर रहा है। Following after it will only add to the economic barbarism that is rampant everywhere, which is responsible for all the degradation around. The corrosion of moral and deeper values, naked barbaric selfishness has been the cost of such an endeavor, and such a system is ultimately bound to collapse। और हो ही रहा है। अब तो खाली एक बबल है, समहाउ उसको मैनेज कर रहे हैं ग्लोबली, जिसमें मीडिया को भी काम में ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम में ले रहे हैं। एक्चुअल में तो आपको पता ही नहीं पिक्चर क्या है उसमें। मीडिया हाउसेस को मैनेज किया जा रहा है, सोशल मीडिया को मैनेज किया, सबको टोटल मैनेज किया जा रहा है। आप इनके इंटरव्यूज देखो, फेसबुक का सीईओ है और है, इनको बिठा के वहां जब इनके क्वेश्चनेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का, सब टोटल सब रंगे हुए हैं इससे। इवन यहाँ के हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो स्वयं संज्ञान किन किन विषयों का ले रहे हैं, तो आप देखो, आप होमोसेक्सुअलिटी का, इसके उसके ऊपर स्वयं संज्ञान लेके इसकी सुनवाई कर रहे हैं। जो देश के मुद्दे, तो क्या देश वीरान हो गया और मुद्दों से? तो यदि आपकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति ये है, आशा कहाँ रख रहे हो आप? मतलब और कहाँ? क्योंकि हम ये देख नहीं रहे। पशु के लिए तो यहाँ World War III हो जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्योंकि आप उसी स्तर के हो, वैचारिक आदमी है। श्री अरविंद के लिए तो 100 साल बाद भी क्या होगा, वो तो पहले ही भाप जाएंगे। And such a system is ultimately bound to collapse। If we think that science can help us here, we are fools। If anything, it is an agent। Science क्या है? Agent to bring about a speedy end to things, because its use and helpfulness entirely depends on the consciousness using it। Science क्या कर लेगा इसमें? And to expect, और दूसरे क्या कहते हो? अरे देखो, अब ये तो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल के अच्छे यूज भी हैं, खराब भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ कितने भी अच्छे आप उसके ऊपर महाभारत, रामायण, रामचरितमानस कुछ भी देखते हो, तो भी अब ये हेल्थ वाले ये कह रहे हैं भैया आपके रूम में चार्जिंग में मत लगाना, दूसरे में सो जाना, बगल में तो रखना ही मत। इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेंट की बात है। और जबकि आप तटस्थ रह भी नहीं सकते, ये तो सोच सोच के इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया ही नहीं कि आपने उसकी तरफ देखा और पता चला कि इतना लंबा समय जबरदस्ती का चला गया? आपको शॉपिंग करनी ही नहीं थी, जबरदस्ती कर रहे हो। And to expect a better outcome from an economic barbarian who is running after materialism is stupidity। इसलिए कभी भी ये चीज हो नहीं सकती। परिणाम पूरा विश्व आपको दिखा रहा है, फिर भी इस स्टेटमेंट की फैलेसी, उस चीज की बिल्कुल निरर्थकता, उसका आभास नहीं हो रहा। ये है जोरदार बात, विचित्र बात ये है। पूरा विश्व इससे करा रहा है, तकलीफ पा रहा है, और हम कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है, हार्मलेस सा है तो। And this is what meets our sight when we look around। Under such a scenario, it is impossible that anything other than what we are seeing can happen। जो चारों तरफ देख रहे हैं वो तो इसके नेचुरल परिणाम है।
इसमें आश्चर्य तो इस चीज का है कि जैसे मनुष्य हैं उसके बावजूद ये जचा हुआ कैसे है खेल, क्योंकि उसमें साइकिक पीछे है, जो आपकी कितनी भी चीजों के बावजूद सारी चीज को थोड़ा सा ह्यूमन मानवीय बनाए रखता है। मनुष्य नहीं बना रहा इसको, तो ये तो आपके पीछे एक थोड़ा कुछ साइकिक एलिमेंट है, जो इतनी पाशविकता के बावजूद, नहीं तो निगल जाए एक दूसरा, एक कंपनी दूसरी को निगल जाए, एक देश दूसरे को निगल जाए, एक परिवार दूसरे को, एक भाई दूसरे को, कोई किसी को नहीं छोड़े अगर उनका बस चले। अगर ये संभावना हो तो हर जितने भी, हर कोई भी फील्ड का टेंडर भरने वाला दूसरे को निगल सकता है। वो एक अधिकारी सब दूसरों को निगल सकता है, एक पॉलिटिशियन सब दूसरों को निगल सकता है। मन में तो है, बस नहीं चलता। तो एक से नहीं होता तो दो चोर मिलके कहते हैं अब दोनों भज लेंगे इसको, अब दोनों कर लेंगे। व्यापार में दो जने, एक ने टेंडर भरा 100 करोड़ का, आप जानते हो इसके लूप होल्स, तो वो जाके चुपचाप उसको कहता देख ऐसा है, तेरे को ब्लैक लिस्ट करवा सकते हैं, 100 करोड़ का काम है, 3 करोड़ मेरे को दे दे, मैं चक्कर में ही नहीं आऊंगा, तू चुपचाप मेरे को दे दे। ये तो रोज का काम है, डेली का काम है ये, डेली, हर टेंडर के अंदर। फिर कहते इसने इतना गबन किया, अरे ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, कोई ये उस व्यक्ति विशेष की नहीं। इवन द materialistic fruits that the writer wishes for everyone is an impossibility now, वो हो भी नहीं सकते। Neither healthy goods nor services are possible now. If anything, they have become tools to deprive you of your well-being and happiness, even of your outer physical being. Outer physical being की भी well-being और happiness नहीं रही, परिवार का सिस्टम नहीं रहा, इवन अच्छी चीजें नहीं मिल रही है आपको, हेल्थ अच्छी नहीं मिल रही, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही। अगर ये अच्छी होती तो एवरी नाउ एंड देन जो मेडिकल जर्नल्स छप रहे हैं, आपका बीपी की जो रेंज है हमेशा धीरे धीरे, पहले रेंज मान लो ये मिनिमम जितनी मानते थे, अब उसको अगली बार और उससे पहले 100 आपकी एक हेल्दी रेंज थी, अब कर देंगे 98, और ज्यादा बिक्री हो जाएगी। ये जर्नल यहाँ तो छप नहीं रहे, पूरे विश्व में ये चीज चल रही है। और आप ही कह रहे ऐसे मिल सकती है, तो पहले एक समय हो सकता है ऐसे लगता हो, क्योंकि आपको लगता है ये चीज इंडिपेंडेंट है, अरे ये राक्षसी है, समझो इसको। If we see the above quotation in this light, then we clearly see that though very clearly crafted, cleverly crafted, उसकी बात बड़ी cleverly crafted है, it is a stupid and false assertion that has nothing of the truth into it. For a person seeking a deeper inner life, these things cannot be an attraction. These things fall into their right place as one moves towards that true thing. सच्ची चीज की ओर मूव करोगे, सच्चा कल्याण बाहरी भीतरी उसी से हो सकता है। ये नहीं है कि आंतरिक कल्याण तो माँ के पास जाने से होगा, बाहरी कल्याण किसी कॉर्पोरेट के पास जाने से होगा। ये विभेद ही हमको मूर्खता में डालता है। In themselves they can never be a source of attraction. It is only in the higher consciousness that one can have the capacity to properly handle even such things. When the soul is in the front, these things may become simply instruments for its play. अच्छी बिल्डिंग, अच्छी भव्यता, अच्छी पुस्तकें, अच्छी ये सारी इंडस्ट्री अच्छी हो सकती है माँ के निहित। भारत ने ये करके दिखाया और भविष्य इसकी आशा कर रहा है। एंड मैनिफेस्टेशन, unless their rejection altogether is deemed necessary in the case of some individuals. ये एक थोड़ा सा प्रयास किया गया है कि कैसे एक दृष्टिकोण हमको, ठीक है, इसमें अब कुछ बात है, अदरवाइज तो आप अपने स्तर के ऊपर और गहराई से इसके ऊपर विचार कीजिए। देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, आज की क्लास तो बहुत ही हैवी रही है, बहुत ज्यादा हैवी है। कैसे? मतलब जो ऐसा लग रहा है जैसे सर पे हथौड़े पड़ रहे हैं। वो इतना वो जो सोसाइटी का वो श्री अरविंद ने लिखा हुआ है ये सब चीजें, तो वो सोच के और बहुत ही खराब सा लगता है। जो 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 उन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, तो बहुत ही हाँ पर खराब। आपके हाँ जी।
अपने सामने है ये पिक्चर तो। हाँ जी। ये तो बिल्कुल सामने है। जैसे ही आपके ये इकोनॉमिक बार्बरिज्म आता है, आप क्रिमिनल बन जाते हो। आप क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भाईचारा नहीं रहता, मैत्री नहीं रहती। धीरे से देविका जी से मैं खूब व्यवहार कर रहा हूँ, सारी बातें कहीं न कहीं जहां डीलिंग पैसे की आएगी, मैं वहां कुछ न कुछ घटियापना कर जाऊंगा, कुछ न कुछ कर जाऊंगा। मुस्कुरा के ऐसे कहूंगा, देविका जी को पता चले नहीं चले, मैं अपनी स्थिति से गिर जाऊंगा। बहुत ही घटियापना है ये। जैसे ही ये इन्वॉल्वमेंट आता है, बार्बेरिक बना देता आदमी को, मनुष्य नहीं छोड़ता। तो कॉमर्शियल स्पिरिट शुड बी ड्रिवन आउट। श्री अरविंद कह रहे हैं इसको तो चोटी पकड़ के बाहर फेंक दो, इसको निकाल के। अगर कोई भी शुभ, कोई भी अच्छी चीज चाहिए, अब आप कैसे कर सकते हो? आप तो पढ़ाते हो इस चीज को। ये तो बिल्कुल फंडामेंटली ऑपोजिट हो जाएगी चीज जो श्री अरविंद कह रहे हैं। तो वही चीज है कि पंकज भाई, कि प्रॉब्लम्स दिखा दी है और इसका सोल्यूशन प्रैक्टिकल, अब ये बोला सोल इन फ्रंट आ जाएगी तो ये सब चीजें डेफिनेटली, ये तो कोई वो बात है ही नहीं, तो बिल्कुल क्लियर बात है। बट हम्म। जब हम मासेस की बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात, तो यहाँ पूरी मटेरियलिज्म सोसाइटी की हो रही है, इंडस्ट्रीज की हो हाँ। रही है। हाँ। तो वहां पे कैसे? अरे भाई, इससे एक चीज तो आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि डिसइल्यूजनमेंट जो इनके विकास का मॉडल है वो नहीं काम कर सकता। इन निष्कर्षों पे तो आओ सबसे पहले। ये जो आपको जो पिक्चर दिखा रहे हैं कि ऐसे करके विकास हो जाएगा, इतना ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी हो जाएगी, तो ये जो जो बता रहे हैं वो पिक्चर संभव है क्या? ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इतनी बात तो जो करना क्या चाहिए वो तो बाद की बात है, पहले ये तो हो कि यार ये जो कह रहे हैं ये बात तो नहीं है, ये पिक्चर तो क्लियर हो। ये फंडामेंटली ऐसे नहीं हो सकता जो पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। फिर करना क्या चाहिए उसके लिए? फिर बाद में जो हम ये काम कर रहे हैं, आपके हृदय में माँ, शुरू कहां से करोगे? अपने से ही तो करोगे, खुद से। आपके हृदय में माँ जो कह रही है हु बहू, वो कर लो, आप तो करो। आपको माँ अपना साधन बना लेगी, आपके माध्यम से जो करेगी आपकी क्षमता से थोड़ी करेगी, आपको पता ही नहीं रहेगा। आप तलवार बन के दुर्गा के हाथ में अगर रह जाओगे तो संहार वो करेगी, आप थोड़ी करोगे। तलवार की धार थोड़ी मारती है, ये तो शूरवीर का वार है, वो मारता है। तलवार क्या कर लेगी? अच्छी भली तलवार है, वो किसी भीरू आदमी है, डरपोक आदमी है, कांपता रहेगा, तलवारें क्या करेगी? उसको तो दूसरा डांट देगा, उसमें ही मर जाएगा वो, उसमें ही कपड़े गंदे कर देगा वो। तलवार की धार नहीं मारती है, किसके हाथ में है वो मार मार करती है। तो आप किसके हाथ में अपने आप को देते हो, वो मार करेगी। तलवारें क्या करती है? तलवारें तो बेकार है। तलवारों से जीती जाती है कोई चीज? किसके हाथ में उससे जीती जाती है? उसके हाथ में हो तो भी जीत लेगा, नहीं है तलवार तो जीत लेगा, उपस्थिति मात्र से जीत लेगा। भगवान कृष्ण सारथी रूप में थे, युद्ध जीत लिया, और वो बेवकूफ उनसे अक्षौहिणी सेना मांगने चला गया दुर्योधन, और मांग के आ गया, और फिर बाद में कहता है वाह वाह मैंने उस बेवकूफ को नहीं लिया। तो इतनी बात तो उसको शकुनी को भी सेंस थी, अरे गधा कहीं के, तूने क्या मांग क्या है? क्या मैंने उसको अकेला कर भी क्या लेता? उसने तो ये प्रण किया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे तूने गलत कर दिया। ये तलवारों से थोड़ी कोई होता है देविका जी। आप किसके हाथ में अपने आप को दे दे? तो राक्षस के हाथ में दोगे वो लेगा काम में। माँ के हाथ में दे दो, आपकी क्षमता से थोड़ी काम में लेगी वो जिस तरीके से काम में लेगी हमारे सोच समझ से परे है। इसका एकमात्र, आप कितनी भी चर्चाएं कीजिए, मैं तो हर चीज को, क्योंकि मेरे को यही निष्कर्ष समझ में आता है, यही निष्कर्ष है कि अपने आप को माँ के हाथ में दो बस, और जो करना है वो अपने आप कर लेगी। और उसका उदाहरण मैंने तो दे दिया आपको। हिंदुत्व की आशा इनके ऊपर थी, इस पार्टी के ऊपर, तो इनको ला के सिरमौर बनाया। जबकि मोदी जी का नाम तो प्रधानमंत्री के लिए खुद इनकी पार्टी वाले ही, उनका आप पीछे देखो, सुषमा स्वराज वगैरह ही एंटी थे। इसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी है, वो तो बिल्कुल, वो तो बेचारा चेरिश कर रहा था, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री सीधे सीधे। उसकी तो जैसी बेचारे की बर्फ के अंदर उसको लगाया। देखो आप, ये नाम तो नहीं था नरेंद्र मोदी का, पर एक आशा थी, एक आशा ने इनको लाके रखा। ये हाईजैक हो गया इनका प्लान, पश्चिम के विकास, इनके सेल्फिशनेस ने, इनकी जो भावना है उसको थोड़ा सा, पार्टी के अंदर विभेद, क्लैशेस में ये आया, तो
भारत की आत्मा ने, अब वो चाहे आप वोट पॉलिटिक्स कहो या कुछ भी कहो, यही बात हमारे जीवन में। आप कारण बाहरी बताते हैं, कारण डीपर होते हैं उसके। एक पंकज भाई, आपने ये जो बोला कि जो सर्विस सेक्टर है वो बिना चेतना के नहीं हो सकता, हाँ। प्रॉपरली नहीं कर सकता। हम्म। तो अब अगर हम भी फॉरेन में देखें, चाइना के अंदर आप देखो एजुकेशन सिस्टम, वो बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा एजुकेशन देते हैं। और कंट्रीज है जहाँ वो बच्चों को बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे इजराइली है जो अपने बच्चों को बहुत वो कर रहा था। और अगर हम इंडिया के अंदर देखें, तो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे पेमेंट तो बहुत अच्छी है, टीचर्स को सबसे बेस्ट पेमेंट है, बट वो कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती जितना कि यहाँ के प्राइवेट सेक्टर करते हैं। ठीक है, अपने करिकुलम या जो भी कर रहे हैं वो अलग चीज है। अल्टीमेटली ये देखा जाए, चेतना की तो यहाँ बात नहीं हुई ना कोई भी। जहाँ सीधी और सीधी है, जापान है, जापान में सीधी सर्विस सीधी है कि नहीं, गवर्नमेंट के अंदर उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका रिजल्ट कितना है। फियर या नहीं है है, कि भाई, फियर नहीं है कि जॉब से निकाले जाएंगे गवर्नमेंट फियर की जो। बात नहीं है, उसके अंदर कोई कोई इंसेंटिव नहीं है ना। अरे भाई, आपको ये तय कर दिया, जैसे पांडिचेरी आश्रम में आपको निकाला नहीं जा सकता, काम करो, करो नहीं करो नहीं करो, ऐसे के अंदर इसको कोई इंसेंटिव नहीं है इसके अंदर। तो हाँ और जी। उसके अंदर इंसेंटिव ये है कि ये करोगे। और चाइना के अंदर जो इन्होंने पैदा किया है वो तो भय पैदा किया है, तो वो तो पश्चिम की संस्कृति ने या उसकी शिक्षा ने ढोंग पैदा किया ही है। ये तो हम पढ़ के गए हैं। श्री अरविंद ने कहा कि वहां के एथिक्स ने या वहां की चीज ने जो चीज को लाके कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर क्या हो, उससे इंपॉर्टेंट। ऐसे तो इन्होंने जो ओलंपिक्स हुए उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी जो चाइना ने करके दिखाई, पर उसके लिए वो 8-8 10 घंटे अपने छोटे छोटे बच्चों को बिना प्यास ये वो, क्योंकि वो इनसेंसिटिव है बिल्कुल, इसलिए वो रेजिमेंटेशन कर पाते हैं। वो जितना टॉर्चर कर सकते हैं और दूसरे रेसेस जल्दी से उतना टॉर्चर नहीं कर सकती। वो जितना फिजिकल को उस तरीके से कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। पर हम, आप सक्सेस, इन मायनों पे सक्सेस ढूंढ रहे हो तो भ्रमित हो। सक्सेस मतलब आप सक्सेस किस पे, अंतरात्मा आप आए किस लिए, उसमें सक्सेस तो जो माँ श्री अरविंद की पद्धति है उसके बिना और कोई दूसरी पद्धति नहीं हो सकती। माँ जो बता रही शिक्षा की पद्धति, बिना चेतना वो चीज नहीं की जा सकती। अगर मैं आपको हमारा जो तुरंत के अंदर आदान प्रदान है, हमारा जो एक दूसरे से संबंध बना है, स्थापित हुआ है, उसके अंदर यदि चेतना शब्द हटा दिया जाए तो फिर और शब्द बचता क्या है। आपका जो कल्टीवेशन या आपकी जो यात्रा हुई है वो बिना चेतना के किसी भी कारण से क्या और कोई दूसरे हेतु से ये हो सकती थी क्या, ये बताइए मेरे को। जी, बिल्कुल नहीं। तो जो सर्विसेज है वो तो, अरे कॉमनली आप क्या अंडरस्टैंड करते हो सर्विसेज से, वो तो छोड़ दो। सैद्धांतिक रूप से क्या होना चाहिए, कला हमने पढ़ ली, साहित्य हम देखने वाले हैं। हमने एक आपके सामने उदाहरण रख ही दिया। आप पर्सनली यहाँ आके एक चीज फील करके जा चुके हैं कि एक स्थान ओपनिंग का माध्यम बन सकता है। ऐसी ओपनिंग जो आपको पहले पता ही नहीं था कि आपके बीइंग में ये लेयर्स भी हैं क्या। अगर इसमें कोई भी थोड़ी सी भी प्योरिटी में ब्रीच हो, ये आपके साथ ये चीज हो नहीं सकती थी, क्योंकि इतना इनफ तो आपने जीवन जिया है, कई स्थान पे आप गए भी हैं। तो ये जो हाँ, जो चीजें आपने महसूस करी, ये तो अप्रत्याशित हैं, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं। तो ऐसे रेल्म्स हैं, आप सोचते हैं जगत ऐसा है, यही तो नहीं बंधन छूट रहा। ऐसे जगह, ऐसी चीजें, ऐसे व्यवहार, हम कितनी भी भारतीयता की बात कर लो, मेरे को पता है ये एकदम अलग चीज है, एकदम अलग व्यवहार है कि आपके निर्णय किसी दूसरे आधार पे हों। कैसे कम्युनिकेट किया जाए ये। बाकी ये तो साफ साफ है, श्री अरविंद जो कमर्शियलिज्म के बारे में कह रहे हैं, देख लो अब क्या कह रहे हैं वो। क्योंकि अपन अपन नहीं इसको एनालाइज कर रहे, तो श्री अरविंद कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं उसको उसी तरीके से देखो। भाई इतना तो बनता है, किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। श्री अरविंद के दृष्टिकोण से देखना चाहते हो तो इस बात को कि ये क्या कह रहे हैं। कॉमर्शियल मेंटेलिटी आपको एकदम क्रिमिनल बना देती है, एकदम। वो कह रहा है सारों को मिलनी चाहिए।
तो ये इसकी समस्या है। जबकि हम ये सोचते हैं कि जो कमर्शियल है, जितने बंदा कमर्शियल है वो उतना अच्छा फाइनली काम करता है, वो प्रोफेशनलिज्म के पास है। जो कमर्शियल नहीं है तो वो प्रोफेशनली नहीं है इतना, ये तो नॉन क्योंकि आप कमर्शियल। डिजायर के लिए काम करते हो, और गीता शुरुआत ही इससे करती है कि निष्काम कर्म से। गीता की शुरुआत ही निष्काम कर्म से होती है, इसलिए गीता प्रैक्टिकल है, सैद्धांतिक नहीं है। और आप शुरू ही उससे कमर्शियलिज्म में, इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब डिजायर। हाँ, अगर वो इंसेंटिव अंतरात्मा का है तो डिवाइन डिजायर, अगर डिजायर का हो तो ठीक है। हाँ जी। एक जो हम डिजायर की जब बात करें तो हमारे जो वैदिक मंत्रज हैं जितना हम्म। भी, तो वो भी तो है जो आदान प्रदान है देवी देवताओं से, वो सारा डिजायर बेस्ड है। ना। इवन त्र्यंबकम का जो पाठ हम करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, उसमें हाँ, भी यही है कि मैं सब कुछ भोग कर और एकदम राइट होकर फिर मैं जाऊं यहाँ से, इस धरती कौन से। कहता है? नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो तो वही है वैदिक मंत्र। मेरे को मतलब पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, बट सार तो मुझे याद है हाँ, वो त्र्यंबकम। सार भी तो उसी आदमी ने लिखा होगा ना जिसके यही बात है। मंत्र का डायरेक्टली ओरिजिनल आपको पता हैगा खुद? ये मैंने पढ़ा हुआ है पंकज भाई, नहीं बट नहीं, मंत्र का आपको संस्कृत थोड़ी आती है। नहीं नहीं, संस्कृत नहीं आती। बस वही तो मैं कह नहीं, रहा हूं, तो इंटरप्रिटेशन ही तो है। इन्हीं जो शब्दों का दयाल जी पढ़ते इंटरप्रिटेशन जो है। हैं, अरे भाई, हम जो पढ़ रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन भी कोई मटेरियलिस्टिक आदमी करेगा? वो कैसे करेगा? यही गोस्पल ऑफ मटेरियलिज्म कल आपने देखा था, और एक आज आपने देखा है। और धीरे 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 सीप इन करेगा। अगर आप इसको रखते हो तो आप जिस पे जाओगे, आप अपने बच्चे को भी ये चीज कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो त्र्यंबकम वाला तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं, जबकि वो है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए कह रहे हो? महामृत्युंजय तो लॉन्ग किस लाइफ के चीज? लिए है, लॉन्ग लाइफ के है? लिए है। त्र्यंबकम लॉन्ग लाइफ के लिए है, और लंबी लॉन्ग लाइफ उम्र, किस चीज के लिए? अपनी लॉन्ग भौतिक लाइफ शरीर, किस चीज है? भौतिक शरीर की लॉन्ग लाइफ के लिए है वो हाँ, मंत्र। जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर उसका हेतु क्या? कि मैं चाट पकौड़ी खाता रहूं? क्या, किसके लिए लॉन्ग लाइफ, किसके लिए? ये तो हम कह ही रहे थे कि लॉन्ग लाइफ तो विज्ञान अगर करता है तो सही डायरेक्शन में, गलत नहीं है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में, साइकिक आपके रियलाइजेशन में, अगर 300 साल की डिमांड करी जा रही है, चाहिए भैया आपको 60 साल के अंदर आप सांस छोड़ देते हो, तो आप क्या करोगे? लॉन्ग लाइफ तो चाहिए ही। पर पहली बार आपके पास मुद्दा होगा कि अरे मैं कमा रहा हूं तो कोई अच्छी चीज, कॉज के लिए। मैं लड़ रहा हूं तो मेरे देश के लिए, मेरी एनर्जी जा रही है तो माँ के लिए, तो आपके पास कॉज होगा इस सारी चीज के लिए। बात तो कॉज की है ना। लॉन्ग लाइफ जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सारे इंटरप्रिटेशन अब श्री अरविंद ने इंटरप्रेट किया वेदों के मंत्रों को, और एक सोच सामान्य व्यक्ति है उसने किया। गीता का इंटरप्रिटेशन श्री अरविंद ने किया, वही श्लोक दूसरों ने किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई, आपका डायरेक्टली कोई इनरोड थोड़ी है संस्कृत के अंदर। तो जो इंटरप्रिटेशन आपके हाथ लगा उसको, और वो भी हाथ लगा उसको, आप अपने तरीके से जितना आपके समझ में आ रहा है एट बेस्ट, उसको उस तरीके से ले रहे हैं। तो वैदिक मंत्रों को, वो बेवकूफ लोग थे जो अपनी सारी क्षमता इसके लिए लगा रहे थे, वो तो प्राणायाम से ही कर ले रहे थे। मैंने एक सांस लेके मेरे ब्रेन के अंदर यहाँ इकट्ठी कर ली। भाई, जैसे कह रहे हैं सांसें गिन के मिली हैं आपको, ये तो ठीक है कि आपने गिन के मेरे को रेजगी दी है, मेरी जेब के अंदर 100 सिक्के दिए। खर्चना नहीं खर्चना मेरे हाथ में, मेरे 100 नहीं खर्चूंगा मैं, रख ही दूंगा संभाल के बस। तो उनको इस चीज का, प्राणायाम का ये सेंस था। तो एक सांस को ब्रेन में स्टोर कर लिया और समाधि के अंदर चले गए। अब काल क्या कर लेगा आपका? सांस पड़ी है आपकी। इसलिए उनके पास, किसी को इच्छा मृत्यु का है, किसी को कुछ है, या लंबे लंबे जीवन तो पहले जीते ही थे। उस समय जो, ये जो रामायण काल के हैं, वो लोग भी, वो जो आपके उसका जामवंत का उदाहरण मिलता है, वो उसमें गुफा के अंदर सो रहा था। बाद में कहा, रहे तेरे तू सोया रहेगा, तब वो उस काल में, तब भगवान आए। उसको पता था ये यहाँ सोया हुआ है, और ये था कि कोई उठाए उसके साथ में, उसके साथ लड़ाई करूं, मारूं उसको। तो जब भगवान को बाद में देखा, वो पूरा प्रकरण, अरे मनुष्य इतने छोटे हो गए। महाराणा प्रताप के टाइम के राज के देखो, उनके अस्त्र शस्त्र तो वो तो मौजूद हैं। उससे आज हमारी क्षमताएं कितनी छोटी हो गई। हम तो बहुत बोने हो गए।
बहुत ज्यादा बोने हो गए क्षमता के अंदर और के अंदर, और पता नहीं ये बोनापना कहाँ लेके जा रहा हमको। पंकज भाई फिर ये इसका मतलब मिनिमलिस्टिक सोसाइटी होगी अगर हम कहते हैं, जैसे एक आइडिया लेते हैं कि हर पर्सन की जो सोल है वो अपना बाहर आ रही है, वो अभिव्यक्त कर रही है, और वो उस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, फिर तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए क्या है? 2 वक्त का खाना चाहिए, थोड़े से कपड़े चाहिए, एक सर पे शेल्टर चाहिए, दैट्स इट। रिक्वायरमेंट्स क्या है? कुछ भी नहीं है खास रिक्वायरमेंट्स। तो माँ फिर को तो तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और श्री अरविंद को तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। उन्होंने तो एक कहा कि मेरे को तो खाली एक कुंजा चाहिए और एक चटाई चाहिए, फिर भी पूरे विश्व को अधिकार में लेने की बात कर रहे थे, ड्रीम्स देख रहे थे। और वो ड्रीम्स, माँ को रिक्वायरमेंट क्या थी? उन्होंने तो अपनी सारी ओकल्ट सारी चीजें आके श्री अरविंद के चरणों के अंदर ऐसे भेंट करी, वो कह रहे हैं ये तो जगदम्बा ही भेंट कर सकती है, ये समर्पण तो मनुष्य के बस का तो नहीं है, मैंने तो नहीं जाना ये समर्पण। और माँ कह रही है कि कोई भी व्यक्ति ये कहेगा इससे ज्यादा महत्वाकांक्षी औरत या कोई व्यक्ति नहीं दुनिया के अंदर। मातृ मंदिर, एक एक चीज ऐसा निर्माण, वहां की प्रेस, आश्रम इन इटसेल्फ, एजुकेशन सेंटर, स्पोर्ट्स ग्राउंड, गोलकुंड, इतनी बिल्डिंगें। वहां नजदीक की एक बिल्डिंग थी, माँ ने कुछ लोगों को भेजा कि भाई वो उनसे बात करो, वो बिल्डिंग अपने को चाहिए। अभी तो आपके मन में ये वो जगदम्बा थी, सारे मानते थे, ये थे वो थे। नवजात जी जाएं और उससे एक जितने भी डील करके आए, वो कह रहे इसके 50,000 रुपए लगेंगे। आके माँ को बताएं, माँ 50,000 रुपए मांग रहा है। माँ कह रही है अच्छा ठीक है, जाके उससे थोड़ी बात करो। अगली बार जाएं तो कहनी 75,000 रुपए लगेंगे। 3 4 5 बार और 3 गुना रेट कर हो गई इतने के अंदर। माँ ने कहा ऐसा है, इस बार पैसे हाथ में लेके जाना, ह्यूमन ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है, और उसको दे देना। दूसरी डीलिंग के अंदर वो कहता है आप कितने भी पैसे दे दो, मैं नहीं देने वाला। माँ ने कहा मेरे को तो ये जगह चाहिए। दूसरों ने आके कहा कि वो तो कह रहा किसी भी कीमत के ऊपर ये जगह मैं आपको नहीं देने वाला। माँ ने श्री अरविंद को जाके कहा मेरे को ये जगह चाहिए, मेरे को चाहिए किसी भी कीमत पे, बस सीधी बात ये है। तो श्री अरविंद ने कहा बाई टुमारो इवनिंग यू विल हैव इट, बस शाम को आपको, कल शाम तक ये मिल जाएगी। बस ये है कि ये इंश्योर करना कि कोई भी उस व्यक्ति के पास जाए नहीं, अब उसके पास कोई नहीं जाएगा। अब रात को नींद आनी आश्रमाइट्स को मुश्किल हो गई, अब दिन कैसे बीते भाई, कल की शाम कब आई? उनको तो खाना नहीं खाए बेचारे के, ओहो कुतूहल हो गया ये कैसे आएगी। अब बड़ी संकट की स्थिति आ गई, सो गए साहब रात को जैसे तैसे करके। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, अब तो सारों के ये हो गई जैसे सस्पेंस का क्लाइमेक्स सा पहुंच गया हो। बाद में देखते हैं आश्रम के अंदर कोई एक आदमी झुंझलाट से आ रहा है, चाबी फेंक के गए, मैं भी कैसा पागल था, ये उनको ये चाबी दे देना और बोलता ना मैं बेवकूफ था। अब बताओ। तो कहते हैं कैसी, ये तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लेडी थी, उसने तो हाथ रख दिया मेरे को तो चाहिए ये बस किसी भी कीमत पे। ये बकवास बातें हैं बिल्कुल, कि उस आदमी को तो किस लिए चाहिए, तन पे एक कपड़ा, और ये सब टोटल बकवास है। ये कौन सी आध्यात्मिकता कहती है ये? हमारे हर देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, कोई भी हाथ जोड़ के कोई सा ही नहीं खड़ा, तैयार खड़े हैं वो तो कि आओ हम मारने के लिए तैयार हैं। ये सब टोटल दकियानुसी बातें हैं, बाद के समय की, पश्चिम से उधार ली हुई। हमारा कोई भी देवता कमजोर नहीं है इसके अंदर, सारा खूब तैयार है अच्छे से, एक सेकंड भी टॉलरेट नहीं करता। पूरे विश्व के हर जना ये क्या कह रहा, मैं सुप्रीम हूं। हर देवता कहता है मैं सुप्रीम हूं। गणेश जी जो है वो शिव जी की शादी के अंदर आ गए, शिव विवाह के अंदर गणेश जी आ गए। तो दूसरे कह रहे यार ये बात क्या चल रही है, कैसे पागल लोग हैं क्या? जो बेटा है वो माँ बाप की शादी में कैसे आ गया? ये तो बड़े इमोरल लोग हैं, कैसे समझाओ अब इसको? तो ये जो बातें हैं ना कि खाली मेरे को तो एक तन पे कपड़ा चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, बिल्कुल न हो तो भी ठीक है, और कैसे आ गए पूरे गणेश? हैं। बा- पंकज भाई, गणेश जी तो बाद में पैदा हुए थे ना, बाद में, शादी के बाद हुए थे ना वो। वो कैसे शादी में आ गए शिव जी? और ये तो कभी सुना ही नहीं, शिव जी और पार्वती जी के। वीडियो रुक गई है शायद, नेटवर्क।
शिव ने भौतिकता को पकड़ा। तो इसलिए पूर्व की जो पतन हुआ उसका कारण ये था कि उसने पश्चिम ने जिस चीज को पकड़ा उसने छोड़ दिया, और पश्चिम के पतन का कारण ये था कि उसने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया। तो छोड़ नहीं ये दिया, क्या छोड़ा नहीं, छोड़ने के कारण नहीं, क्योंकि वो एक काल अगर पूर्व जो है अपने उतने ही वैभव में होता तो पश्चिम को स्थान ही नहीं मिलता। बच्चों के पास अगर वो बैठे रहे, उसको फ्री नहीं छोड़े, तो बच्चा बेचारा शर्मा के अपना पूरा काम करे नहीं। तो एक बार वो विड्रॉ कर लेते हैं, अरे छोड़ो इनको, बच्चों को बाड़े के अंदर, ये जो करते हैं एक सीमा के अंदर उसको छोड़ दिया। और लेकिन ये भी भैया हमने कई जैसे अगर जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो वो तो अगर कोई आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि वो किसी को कैसे नहीं अपना सकता है, वो तो पूरे ब्रह्मांड को अपना सकता है, या तो फिर वो आध्यात्मिक हुआ ही नहीं। आध्यात्मिकता खाली इंट्यूशन के पार्ट पे नहीं है ना, ये वही आध्यात्मिकता नहीं है। यहाँ अगर वही सुप्रामेंटल हो जो अपने मौलिक स्तर पे सुप्रामेंटल हो, तो फिर धरती पे आने का एक्स्ट्रा क्या फायदा है? इस मैनिफेस्टेशन का क्या फायदा हुआ? इस मैनिफेस्टेशन का इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर जब सुप्रामेंटल आएगा तो यहां होगा वो और ज्यादा एनरिच्ड अभिव्यक्ति होगी। इसलिए शुरू में आध्यात्मिकता आपने जो वैभव में इंट्यूशन के अंदर थी, फिर एक एक पार्ट आपका माइंड इंट्यूशन के नजदीक का, फिर माइंड प्रॉपर माइंड, फिर वाइटलाइज्ड माइंड, फिर वाइटल वाइटल, फिर बाद में वाइटल से धीरे धीरे आप नीचे उतरे, फिर फिजिकल। श्री अरविंद और माँ का पदार्पण इस समय हुआ जब घोर फिजिकलिटी है, तब उन्होंने दिव्य जीवन का उद्घोष सामने रखा। साधना में भी जब आप प्रवेश करते हो तो आप साइकिक के प्रेशर के कारण प्रवेश तो कर लेते हो, पर फिर आपकी साधना इन भागों में उतरनी शुरू करती है। तभी तो साधना में समस्याएं आती हैं। अगर साइकिक ही रहता तो रोज गार्डन रहता, आपके लिए रोज बेड रहता। समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि पदार्पण तो आपने साइकिक के आधार पे या जिस भी आधार पे कर लिया। अब ये दूसरे भाग खड़े होंगे। भारत को उन सारों का, अरे भाई चिकित्सक बनने के लिए पहले मेरे को उस रोग का अध्ययन करने की तो जरूरत है। आध्यात्मिकता जैसे अंधेरे के अंदर आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल के आते हैं, तो आप कह रहे यार एक बार लाइट बंद करो, पता चले कौन सा किधर से निकल के आता है। वो पूर्ण प्रकाश रहेगा तो ये निकलेंगे नहीं। तो वैसे ही किनकी क्या आवश्यकताएं हैं क्या नहीं है, एक ये बहुत सारे विश्व चक्र चल रहे हैं, इसमें कोई इतनी सामान्य चीज नहीं है। ये तो खाली ह्यूमन साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तो कुछ कुछ आभास होगा। ये भी श्री अरविंद कह रहे हैं तब कुछ समझ में आ रहा है हमको, हमारे बीइंग का ही नहीं पता कि क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है ये, बहुत जटिल प्रक्रिया है। जनरली जो इसकी बात की जाती है थोड़ा सा ये सोचने में ही लगता है कि जो हमेशा मैंने शुरू में बोला कि अगर पूर्व ने आध्यात्मिकता को पकड़े रहा, जो आध्यात्मिकता को पकड़ेगा वो भौतिकता को कैसे छोड़ सकता है? वो तो अपने आप में समृद्ध ही रहेगा। समृद्ध था। ये बीच का जो आक्रमण का, ये जो बीच का काल रहा, अगर ये विभेद होता तो और दूसरी संस्कृतियां तो आज नाम लेने को भी नहीं है। और भारत में अभी हम बैठ के ये बातें कर पा रहे हैं, यही अपने आप के अंदर, और मां श्री अरविंद का आना, ये तो एक पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा फैक्ट है। पीछे जो भी रहा हो, पर उनका आना अपने आप में आप छोटी घटना कैसे मानते हैं? तो सुप्रीम स्वयं यहाँ आके मैनिफेस्ट हो चुके हैं। तो ये अटूट धारा है। वो धारा के जो भी बीच के कारण रहे हों, उनकी इंपॉर्टेंस तो टाइम स्पिरिट खुद बताए। हम उसमें प्रवेश करें टाइम स्पिरिट के अंदर तो हमको कुछ आइडिया है। सामान्य चेतना जो कि देश और काल से बंधी हुई है, टाइम फ्रेम्ड है, हम नहीं समझ सकते कई चीजें। टाइम से परे चीजें क्या होती हैं,
या इंडिविजुअलिटी से परे चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा पोटेंट चीजें हैं। एक व्यक्ति के अंदर वो हो सकती है, आपको बहुत मल्टीट्यूड की आवश्यकता ही नहीं, एक क्षण में अनंतता हो सकती है, एक व्यक्ति में शाश्वतता और सारी चीजें हो सकती है। ये डायमेंशन अलग है, बहुत अलग डायमेंशन है। सनातन धर्म वाली पुस्तक हमारी इसी चीज को एड्रेस कर रही है, इन्हीं प्रश्नों को, पर वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म प्रश्न है वो। और जो ये पूर्ण या सर्वांगीण योग की बात है, ये तो डिसाइसिवली आज की भाषा में मां श्री अरविंद कर रहे हैं। क्या तो वेद ने ये बात कही थी, क्या मां श्री अरविंद ने कही है? तो इसलिए हमको करने का फिर भी यही काम है कि भाई विश्वास करें और इसके अंदर आए, बस। ठीक है विवेक? तो मतलब अगर इसे समझना हो तो बहुत ज्यादा विकसित होना पड़ेगा, तब ये बातें समझ में आएंगी धीरे 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 धीरे, कि ये इतने सतह पे नहीं है वर्ल्ड मूवमेंट्स, और इसमें इतनी गतियां, इतनी चीजें आके शामिल हो रही हैं, सामान्य चीज नहीं है ये। कि देश की गतियों को कितने कितने मूवमेंट्स पूरे जगत के अंदर हो रहे हैं, और उसके कई कई कारण हैं। इंटरप्रिटेशन यदि आप गलत करो तो कभी नहीं समझ सकते। लोग तो कोरोना को वरदान के रूप में बता रहे थे, पर उसमें तो खाली कोरा कारण ये रहा कि हमने उसके प्रति मूर्खता का रुख अपनाया। जितना उसके अंदर कुछ था नहीं, उससे ज्यादा भयभीत होने के कारण हमने इतने जीवन गंवाए और इतनी पीड़ा भोगी। वो हमारी मूर्खता दिखाता है, उसमें कोई पाठ सीखने का नहीं है। अगर मूर्खता करोगे तो तकलीफ पाओगे, मूर्खता है। आश्रम में हमने न मास्क लगाया न सैनिटाइजर काम में लिया, हमने कभी कुछ नहीं किया, टच ही नहीं किया। अब ये सोच के थोड़ी हो सकता है। आपकी प्रकृति में भय तो प्रवेश कैसे, वो तो सारा माहौल आपने देखा कितना भयंकर भय का था, और उसमें आप कम्युनिटी चला रहे हो। कुछ स्वर हमारे पास ये भी आए, यार आप बच्चों को अपने अपने घर भेज दो, या आप ये करो। सारी बातें रही हमारे पास तो, पर एक जने को हमने, जितने भी हमारे पास फार्म हाउस से इस पे कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर 100-150 लोग जो काम कर रहे थे, कभी कोई कुछ नहीं, सब सुचारू वैसे का वैसे। माँ की कृपा अगर हो तो सब चीजें वैसी की वैसी। और ऐसे संकट काल हैं वो आपके लिए और अच्छे काल हो जाते हैं। सबसे अच्छे काल ही आपके जीवन के वही होते हैं जो संकटमय होते हैं। सुखद काल तो सबसे बुरे काल होते हैं। ठीक ठीक है है, भैया। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? प्रणाम पंकज भैया और सभी को। तो क्या आज का टेक अवे हमारा ये रहेगा कि माँ को हमारा सब कुछ अर्पण करे और एक माँ का रिप्रेजेंटेटिव बन के इस पृथ्वी का हिस्सा बन के रहे, क्योंकि ये सारी जो डेवलपमेंट के नाम पे जो मैडनेस है, या जो भी ये मैमोथ कैपिटलिस्ट धौंस जमाकर एक असुरक्षित भाव का निर्माण किए जा रहे हैं। और हम अंतरात्मा में जानते हैं कि ये इतनी सारी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। ये आज के बाद तो डेवलपमेंट बंद ही करना चाहिए, जो भौतिकता का है। ये जो हुआ है इतना ही इनफ है, क्योंकि काफी सारा पोल्यूशन और वो भी तो बढ़ेगा। तो पहले तो ये लेक्चर से पहले मेरा रवैया ये रहा, ये सब इग्नोर ही कर दो, इससे अपना कुछ नाता है ही नहीं। जिनको करना है करे, मेरी अपनी लाइफ है। मैं इससे, मुझे माँ ने जो दिया हुआ है, जो आशीर्वाद दिए हुए हैं, उसमें मैं अपने आप में संपन्न रहती हूँ। और मैंने अपने आप को अति सुरक्षित, अति कंफर्टेबल बनाया रखा है माँ की कृपा से। तो ऑलमोस्ट ये बाहर क्या हो रहा है, मेरे घर में टीवी भी नहीं है, तो कुछ आता भी नहीं है मेरे पास। ये हुआ वो हुआ, या कोई ब्रेन कंडीशनिंग नहीं आती है, ब्रेन वॉशिंग भी नहीं आती है। तो अभी मेरा रवैया तटस्थ बन के रहना है और साक्षी बन के रहना है, हो रहा है, या अ, बस लाइक ये इनका क्षेत्र में एक्टिव है, मैं अपने क्षेत्र में एक्टिव हूँ, इस प्रकार। हाँ, पर अंतरात्मा सामने आके तटस्थता नहीं छोड़ती, वो तो आनंद में उद्दीप्त कर देगी, और जो करवाना चाहेगी वो करवाएगी। सारथी भगवान बन जाएंगे तो वो आपको कुरुक्षेत्र में नहीं झोंक देंगे क्या? अर्जुन तो बहुत भागने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा मेरे को त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पर अर्जुन की सुनता कौन है? पहले तो भगवान का पार्षद,
फिर बाद में भगवान आप पे अधिकार कर लें। तो जिनके ऊपर भी पार्षदों पे उन्होंने अधिकार किया है, उनके जीवन के अंदर उन्होंने बवंडर पैदा किया है। तो ये हमारा आउटलुक नहीं है कि मेरा जीवन कैसा होगा। मैं तो सुख उसमें पाऊंगा कि माँ मेरे अंदर क्या सुख लेती है, तो सच्चा सुख है। आप एक छोटे से व्यक्तित्व नहीं हो ना, परमात्मा स्वयं हो। तो परमात्मा यहाँ क्या अनुभूति करने आया है? वो तो अपना साम्राज्य स्थापित करने आया है। आप अपना छोटे से दायरे को कंफर्ट मानते हो, उसका तो पूरा ब्रह्मांड है। तो वो यहाँ अपनी संसिद्धि करता है, इसमें क्या गलत बात है? उसको जो पसंद है वो करेगा आपके माध्यम से, जिसके जो माध्यम से है वो जरूर करेगा। जब उसकी सारी सृष्टि है, उसको क्लेम क्यों नहीं करेगा? तो मुद्दा ये रहता नहीं। मुद्दा तो ये है, आपके मूल जो आपका स्वरूप है उसमें जाओ, और आपको करने के क्या काम है वो आपको डिसाइसिवली पता चल जाते हैं, ये करना है मेरे को, बस। और आप हूबहू उसको करते हो, उसमें कोई कष्ट है, आराम है, ये मुद्दे रहते ही नहीं। ये करने का है, आप कर रहे हो, बस। ठीक है, जी जी। ये दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। नहीं तो फिर बाद में व्यक्ति अपने क्षमता, अपना दृष्टिकोण, वो तो ग्रंथि वहीं की वहीं रह गई। वो ग्रंथि तो मूल ग्रंथि नहीं टूटी ना। मूल ग्रंथि वही है जो गीता कह रही है, माम अनुस्मर युद्ध च। मेरे को अनुस्मर, मेरे मत परायण, मेरे परायण हो जा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये जो गीता के जो निष्कर्ष हैं, वो प्रैक्टिकल निष्कर्ष हैं, अल्टीमेट निष्कर्ष हैं। हमारे वेद के, उपनिषदों के सारों का समन्वय गीता ने, इसलिए गीता का सबसे बड़ा होल्ड है आज भी, आप ये देख सकते हो। और कितनी इसके ऊपर व्याख्याएं हो चुकी है, तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये अल्टीमेट है। उतना ही चार्म नई व्याख्या के अंदर है। तो मतलब क्या है इसमें? आप ये सोचिए तो सही, खाली कोई साहित्य होता तो क्या ऐसी चीज होती? कभी नहीं हो सकती थी। जीवन के वाइब्रेंट सत्य हैं ये। और जब तक, और वो सत्य किसके हैं? आप अर्जुन बन जाओ, भगवान आपको काम मिले, जगत में अपना जो युद्ध करके स्थापित करे अपना साम्राज्य, उसके लिए हम हैं, बस। इसके लिए हम हैं, हम भी इसी के लिए हैं। वो जैसे करवाए वैसे रहें। आनंद है इसमें, आनंद के बिना कोई चीज है ही नहीं। पर आनंद हमारे भौतिक के लिए नहीं। सुख सुविधा मिल जाए, अच्छे कंफर्टेबल ये हो जाए, वातानुकूलित चीज हो जाए, मेरे मन मुताबिक ये हो जाए, शांति का वातावरण हो, कोई जरूरी नहीं। ऐसे जगह माँ आपको ले जाएगी जहां आपकी आत्मा के लिए सबसे अनुकूल होगा। वो तो वो तय करेगी आपकी आत्मा के लिए क्या अनुकूल है। आपकी माँ, आपकी गुरु, आपका इष्ट, आपकी अंतरात्मा, ये तो एक ही है। ये तय करेंगे कि आपके लिए उचित क्या है। और वो उचित आपके बाहरी फ्रेमवर्क के दृष्टिकोण से नहीं, एकमात्र आपकी अंतरात्मा के दृष्टिकोण से। और वही सच्चा शुभ है हमारा। इसी के लिए तो आए हैं हम यहाँ। हम और कोई रैन बसेरे के लिए थोड़ी, यहाँ तो मैनिफेस्ट करने के लिए आए हैं। जो भीरू आत्माएं नहीं, ये तो शूरवीर आत्माएं हैं जो यहाँ आई हैं। ठीक है उर्मिला जी? जी भैया, बिल्कुल हम उसी परिस्थिति में हैं। सारे सुख, सारा आशीर्वाद हमारे पास माँ ने रखा है, जो भी मेरे आत्मा के लिए अनुकूल है, मेरे इर्द गिर्द है। तो मैं थोड़ी बहुत रिलैक्स और कंफर्टेबल स्थिति में हूँ। और मुझे वो थोड़ा गिल्टी लग रहा था कि मैं इतना आनंद और इतना सुख माँ से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर रही हूँ। तो क्या ये सुख भोगना, ये आनंद में रहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे कुछ लड़ाई वड़ाई करनी है? लड़ाई बारी की जरूरत नहीं है। आपके आंतरिक क्षेत्र के अंदर होती है, वो बारी नहीं होती है। बारी अभिव्यक्ति हो सकती है, किसी के न हो, वो नहीं कहा जा सकता। आंतरिक क्षेत्रों में यदि आपको ऐसा माहौल मिला है तो आपको अनुकूल है। और अंदर भीतर प्रवेश करो इनकी वाणी के अंदर, और इसमें आपको वो क्या कहती हैं, माँ आपको जो वाणी सुनाती हैं उसको हूबहू करने का प्रयास कीजिए। जी भैया जी। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय धन्यवाद। श्री राम। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।